Hello guys, welcome back to On Time Notes. And in this video, we are going to continue the topic that we left earlier, that is types of distributed system. Before moving forward, I would like to say one thing that I have noticed many of you are watching the videos regularly but haven't subscribed or commented yet. If my content is helping you even a little, make sure you subscribe and let me know in the comments what you would like to learn next. And your support really helps me keep creating better and more useful videos for you. Now let's get started with today's topic, that is distributed system. So basically there are five types: client server system, peer-to-peer system, middleware, three tier and n tier, and we are going to see them one by one. First is client server system. Clients request resources from server over a network, and typically each client communicates with one server. Example, web browsing, a client requesting web pages from a server. In this diagram we can see there are various kinds, and with the help of internet they communicate with the server and get the information that they need from the server. Like just how the example says, web browsing. On various clients we use the web browser, like web browsing, and request the web pages that we need from the server, and the server replies with that web page back to us. तो पहला सिस्टम है क्लाइंट सर्वर सिस्टम. इसमें क्या होता है कि जो भी क्लाइंट है वो रिसोर्सेज रिक्वेस्ट करता है सर्वर से विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क, और टिपिकली एक सर्वर के साथ सिर्फ एक ही क्लाइंट कम्युनिकेट करेगा. जैसे कि एग्ज़ाम्पल हम लोग ले सकते हैं, अभी एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं हम लोग वेब ब्राउजिंग. इसको हम लोग क्लाइंट बोलेंगे, एक क्लाइंट, ओके. एंड वो रिक्वेस्ट करता है वेब पेजेस एक सर्वर से. तो यहाँ पे हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं, नीचे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं. वो इंटरनेट के हेल्प से सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं, और सर्वर वो रिक्वेस्ट को फाइंड कर करके फिर अपने क्लाइंट को वो रिप्लाई बैक करता है. सो ये अपना क्लाइंट सर्वर मॉडल. सो सेकेंड टाइप इज़ peer to peer systems. The peer-to-peer system is a distributed system where all nodes are equal and can act as both client and server without a central authority. Nodes communicate directly with each other, resources are shared equally among nodes, and tasks are distributed among all nodes in the network. Example, file sharing network like BitTorrent. So peer-to-peer system क्या है? ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है जहाँ पे जो भी नोड्स है वो इक्वल है. मतलब वो एज अ क्लाइंट भी एक्ट करेंगे एंड सर्वर भी एक्ट करेंगे, और इन पर कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं रहता. मतलब ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहते, वो खुद ही क्लाइंट है, खुद ही सर्वर है. और जो नोड्स है वो डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, एंड रिसोर्सेज भी वो इक्वली शेयर करते हैं नोड्स में, और जो भी टास्क है उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सारे नोड्स में विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क दे हैव फॉर्म. मतलब जो भी नेटवर्क उन्होंने अभी फॉर्म किया है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर करके उन पे वो टास्क भी डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं. जैसे कि अभी एक एग्जांपल है फाइल शेयरिंग नेटवर्क लाइक BitTorrent. सो एज वी हैव सीन above, this is a diagram which represents peer-to-peer system. Here we can see each and every node is connected. Node means the computers or machines. These are connected to each other and communicate directly with each other without any central authority. तो ये जो डायग्राम हम लोग देख सकते हैं वो अपना पीयर टू पीयर सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है. यहाँ पे देखो बहुत सारे नोड्स हैं जो कि एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड है, लेकिन इन पर कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है. वो खुद ही क्लाइंट है, खुद ही सर्वर है. तो ये डायग्राम हम लोग पीयर टू पीयर सिस्टम्स के लिए बनाएंगे. सो नाउ विल सी द थर्ड टाइप, दैट इज मिडलवेयर.
Middleware acts as a mediator between different applications and data exchange between applications, helps applications running on different operating systems work together seamlessly. Example, message queues, remote procedure calls, that is RPC, and web services. हम लोग देखेंगे थर्ड टाइप जो कि मिडलवेयर। इसमें क्या होता है कि ये एज ए मीडिएटर एक्ट करता है, मतलब बहुत सारे एप्लीकेशंस के बीच में एज ए मीडिएटर ये एक्ट करता है और एप्लीकेशंस के बीच में कम्युनिकेशन या फिर डेटा एक्सचेंज को ये इस्टेब्लिश करता है। जैसे कि अभी डिफरेंट एप्लीकेशंस है और उनके बीच में कम्युनिकेशन और डेटा एक्सचेंज कुछ भी करवाना है तो मिडलवेयर यूज़ करते हैं हम लोग। और एप्लीकेशंस जो कि डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे काम कर रहे हैं उनको एक साथ काम करने के लिए वो हेल्प करता है मिडलवेयर। इसके हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि मैसेज क्यूज़ या फिर आरपीसी और वेब सर्विसेज। सो दिस इज़ द डायग्राम दैट we'll draw for the middleware. So here we can see there are multiple nodes, they are connected to a network, and here they are running multiple applications, and these all applications that are running on different OS systems are connected together with the help of middleware. Means application from OS1 and application from OS2 can communicate with each other or share resources with each other. Similarly, with application from OS2 or OS3, they can share data or communicate with each other. Similarly, application from OS1, OS3, they can also communicate and share data with the help of middleware. तो ये डायग्राम हम लोग मिडलवेयर के लिए बनाएंगे। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं मल्टीपल नोड्स जो कि सिस्टम 1, सिस्टम 2, सिस्टम 3, इनमें डिफरेंट ओएस सिस्टम्स है, OS1, OS2, OS3, और इन एप्लीकेशंस इन सिस्टम पे रन हो रही है वो भी डिफरेंट है। लेकिन इन तीनों को एक साथ कनेक्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मिडलवेयर। विद द हेल्प ऑफ दैट क्या है कि एप्लीकेशन जो OS1 पे रन हो रहा है और एप्लीकेशन जो OS2 और एप्लीकेशन जो OS3 पे रन हो रहा है, इन तीनों को हम लोग एक साथ अगर कुछ काम करवाना, इनको कम्युनिकेट करना है या फिर डेटा शेयर करना है तो हम लोग मिडलवेयर यूज़ करेंगे। उसके हेल्प से वो किसी के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। एप्लीकेशन जो उसका डेफिनेशन ही बोल रहा था कि वो डिफरेंट एप्लीकेशंस जो कि दूसरे OS सिस्टम्स पे रन हो रहे हैं उनको एक साथ हम लोग वर्क करा सकते हैं। सो द फोर्थ टाइप इज 3-tier system. Different layers and servers handle different parts of a program. Data is stored in the middle layer. Each layer runs on separate server. It includes application layer, data layer, and presentation layer. And this is mostly used in web or online applications. Example, web applications with separate front end, back end, and database servers. इसमें क्या होता है कि डिफरेंट लेयर्स और सर्वर्स रहते हैं जो कि एक प्रोग्राम के डिफरेंट पार्ट को हैंडल करते हैं। एंड इसमें जो डेटा है वो मिडल लेयर में स्टोर होता है और सारे जो लेयर्स है वो सेपरेट सर्वर पे रन होते हैं। इसमें कौन सा लेयर होता है, एप्लीकेशन लेयर होता है, डेटा लेयर होता है, प्रेजेंटेशन लेयर होता है, और ये ज़्यादा करके वेब और ऑनलाइन एप्लीकेशंस में यूज़ किया जाता है 3-tier सिस्टम। इसका एग्जाम्पल भी देख सकते हैं हम लोग, वेब एप्लीकेशन जिसका फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस सर्वर्स सारे अलग अलग सर्वर्स पे रन हो रहे हैं। सो दिस इज द डायग्राम विच रिप्रेजेंट्स 3-tier आर्किटेक्चर। हियर वी कैन सी 3 different layers, that is data layer, application layer, and then presentation layer. Here we can see in data layer it is all about the database and data that we store. Then in application layer, the servers that help find the data that clients need. And presentation layer is the clients and web server. So basically what happens, clients are connected to internet and then they search
whatever the data or information they need, then this internet sends it to the server, and that server searches for that information or data in this database layer, and if found the data in the database, then it gets back to the client with that data. So this is how a 3-tier architecture is. So ये है अपना 3-tier architecture. So इसमें क्या होता है, 3 layers होते हैं, डेटा लेयर, एप्लीकेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर. सो डेटा लेयर में क्या होता है कि अपना जो भी डेटा है वो सब डेटाबेस में स्टोर रहता है. एप्लीकेशन सर्वर, इसमें क्या होता है कि सर्वर में जो इन्फॉर्मेशन है, एप्लीकेशन है, वो रन होता है. फिर जो डेटा वो फाइंड करता है डेटाबेस में, फाइंड होने के बाद वो क्लाइंट को रिटर्न करता है. और प्रेजेंटेशन लेयर में अपने क्लाइंट्स जो कि कनेक्टेड है इंटरनेट से, एंड जो भी इंफॉर्मेशन या फिर डेटा वो चाहिए वो इंटरनेट के थ्रू सर्च करते, फिर वो जाता है सर्वर के पास रिक्वेस्ट, सर्वर वो चेक करता है डेटाबेस में कि है कि नहीं, फिर अगर है तो वो इन्फॉर्मेशन लेके क्लाइंट को दे देता है. यह अपना 3-tier आर्किटेक्चर. So now we'll see N-tier systems or N-tier architecture. It is also called a multi-tier distributed system, and it is similar to 3-tier architecture but can have multiple layers. Provides greater flexibility and scalability by allowing more layers used in complex enterprise applications and distributed systems. Example, large-scale web application with tiers handling various functions. So जो एन टीयर सिस्टम है इसको हम लोग मल्टी टीयर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम भी बोल सकते हैं, एंड इस सिमिलर है 3-tier आर्किटेक्चर से. सिर्फ इसमें फ़र्क इतना है कि इसमें हम लोग मल्टीपल लेयर्स भी ऐड कर सकते हैं, एंड ये ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी और स्केलेबिलिटी अलाउ करता है बाय अलाउइंग मोर लेयर्स. मतलब बहुत सारे लेयर, एक्स्ट्रा लेयर्स हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं. और इसको ज़्यादा करके इंटरप्राइज एप्लीकेशन या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में, जैसे कि कॉम्प्लेक्स एंटरप्राइज एप्लीकेशन या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, उसमें इसको यूज़ करते हैं. एंड एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि जो कि एक लार्ज स्केल वेब एप्लीकेशन है जो बहुत सारे या फिर मल्टीपल टीयर्स को हैंडल करता है, मतलब वेरियस फंक्शंस है जिसमें. So this is the N-tier architecture. Here we can see 3 layers similar to 3-tier architecture, that is data layer, application layer and presentation layer. Here we can add multiple layers as well, but in 3-tier only that 3 layers are more important, but in N-tier we can add other layers as well. सो ये है अपना N-tier का आर्किटेक्चर. इसमें भी 3 ही लेयर है, देखो, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, डेटा लेयर, और चाहिए तो इसमें हम लोग बहुत मल्टीपल लेयर्स भी ऐड कर सकते हैं. सिमिलर ही है इसमें भी, जैसे कि अभी कोई वेब ब्राउज़र है फ़ोन या फिर लैपटॉप पे, फिर वो रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर को, सर्वर ढूंढेगा डेटाबेस से, फिर डेटाबेस से लेके वो देगा अपने ब्राउज़र या फिर लैपटॉप, जो भी ब्राउज़र हम लोग यूज़ कर रहे हैं उस पर हम लोग को रिजल्ट दे देगा. So this was it for the types of distributed systems, and I hope you found this video helpful. And if you did, guys, please don't forget to like, share and subscribe to the channel. Your one subscribe can keep me motivated to make such more videos, and also share it with your friends because that might be useful for them as well. And thank you for watching till here. Please do subscribe, guys. Please do subscribe.